Again, welcome to NCERT Error, Class 11th, Part 2. Last video, we discussed about animal diversity, few errors. Again, few of the errors, what it is left in Part 1 video, we are going to cover in this video. And few more other chapters also, it will be covered here. Go to first error here, what we left in last video. From Animal Kingdom, one point it is mentioned here. एक point है Animal Kingdom के NCERT English lines में that Hydra के बारे में बात किया जा रहा है जो कि polyform है. The former means here polyp is a sessile and cylindrical. Yes, correct. Sessile, it is wrong. Why I'm saying it is wrong? It is not sessile. Why? Wait. And if you'll do Google, yes, it's written on Google I'm saying. It's written on Google that yes, Hydra is sessile, Hydra is motile. Google knowledge center नहीं है. नॉलेज के लिए आपको बुक्स पढ़ने होंगे, साइंटिफिक बुक्स, नॉट एनी बुक्स. सो गूगल पे कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें सही हैं. पूरी तरीके से सही भी नहीं है, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है. आप जो लिखना चाहते हैं वो गूगल पर अवेलेबल मिल जाएगा. तो गूगल इज़ नॉट रेफरेंस, गूगल सर्च इज़ नॉट रेफरेंस. इफ़ ऑन गूगल, इफ़ ऑन इंटरनेट एनी बुक इज़ देयर एंड इन बुक मेंशन एनीथिंग दैट यस इट इज़ reference for anything. So why I'm saying it is wrong here, sessile. Polyp form is sessile, no doubt in this. Polyp. But all polyps are sessile. Hydra is exception in that. Hydra here mentioned that Hydra is sessile. It is exception. Again, I'll say it is exception. And it is mentioned in NCERT. I'm not saying this. In locomotion and movement chapter, again Hydra can use its tentacles for capturing its prey. Okay. And also use them for locomotion. I'm not saying, मैं नहीं बोल रहा हूँ. NCERT खुद बोलती है कि हाइड्रा लोकोमोशन करती है with the help of tentacles. Yes, it is perfect. This locomotion and movement, this line is correct for locomotion, correct for Hydra. But the point mentioned in Animal Kingdom that Hydra is sessile, wrong. Polyp forms are sessile. Hydra is exception in that. चलते हैं अगले एरर की तरफ. अगला एरर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. फ्रॉग इट इज लेफ्ट, कॉकरोच डिलीटेड, अर्थवॉर्म डिलीटेड. सो कॉकरोच और अर्थवॉर्म के एरर्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे. फ्रॉग, पहला जो एरर मुझे यहाँ हाईलाइट करना पड़ रहा है दैट इज फ्रॉग हार्ट कंटेन्स कोनस आर्टेरियोसस. According to NCERT, new NCERT also same lines are written, not mentioned, not corrected. Page 82, chapter 7, structural organization in animals. आपको मिलेगा यहाँ पर conus arteriosus. Correct क्या होना चाहिए? Truncus arteriosus. So what is correct? Truncus arteriosus. Conus arteriosus, it is used up to Pisces, up to fishes, Pisces. Cyclostomes, Pisces, they have conus arteriosus in heart. And here in case of frog, it is truncus arteriosus. आप रेफरेंस के लिए, आपको अगर रेफरेंस चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आप इसके लिए ये आर्टिकल, ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. Here Indian Academy of Science Educational Institute in Bangalore, and paper is Structure and Function of Truncus arteriosus of the Indian frog, any frog. अगले एरर की तरफ चलते हैं जो NCERT में मेंशन है. सेम चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. यहाँ इंग्लिश NCERT की फ्रॉग, मेल फ्रॉग की रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंशन है, डायग्राम. और यहाँ बात करेंगे हिंदी NCERT मेल फ्रॉग, हिंदी NCERT मेल फ्रॉग. क्या एरर्स है? इंग्लिश NCERT, ये रही किडनी, ये रहा टेस्टीज से ऊपर की तरफ एक कनेक्शन होता है किडनी के साथ जिसे हम मीजोऑर्कियम बोलते हैं. मीजो मीन्स मिडिल, ऑर्कियम मीन्स टेस्टीज, ऑर्किड मीन्स टेस्टीज. है मीजोऑर्कियम को यहां मेंशन किया गया वासा एफरेंसिया. ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वासा एफरेंसिया इंटरनल स्ट्रक्चर है. मीजोऑर्कियम मार्किंग नहीं है, ये मीजोऑर्कियम होना चाहिए. इस तरफ की डायग्राम में अगर हम बात करें तो ये इंटरनल ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, इन्हें मार्क करना चाहिए वासा एफरेंसिया. सो ये गलत है, मार्क करना चाहिए यहां. और फिर ये वासा एफरेंसिया कनेक्ट होती हैं किडनी के भीतर इंटरनल विथ बिडर्स कनाल. बिडर्स कनाल को हिंदी NCERT में लिखा गया है विडर नाल, और विडर नाल का यहां मार्किंग टेस्टीज पर किया गया है जो कि गलत है. टेस्टीज पर कोई विडर नाल नहीं होती है. टेस्टी ये भीतर की तरफ, किडनी की तरफ विडर नाल का नेटवर्क होता है. तो यहां ये गलती हो गई. विडर नाल ये इन्हें करेक्ट करना चाहिए. यहां ये हो गई मीजोऑर्कियम. अगला एरर ब्लंडर एरर है. अगेन NCERT फ्रॉग
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में फ्रॉग के समरी में एक लाइन लिखी हुई है दैट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इट कंटेन्स सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्किट हार्ट. सॉरी, इट इज नॉट सिंगल सर्किट, इट इज अ डबल सर्किट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन. डबल सर्किट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन. सो सिंगल सर्किट, सिंगल सर्कुलेशन, ये रॉन्ग है. हिंदी की एनसीईआरटी में भी सेम रॉन्ग है, सेम स्टेटमेंट दिया गया है और इंग्लिश की एनसीईआरटी में भी सेम पॉइंट दिया गया है. सो हियर दिस वीडियो पार्ट 2 ends. आपको और भी कोई गलतियां मिलती हैं और भी कुछ एरर्स मिलते हैं अगर हिंदी की एनसीईआरटी में, इंग्लिश की एनसीईआरटी में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, इसे एनसीईआरटी तक पहुंचाएं कि इन इंफॉर्मेशंस को, इन करेक्शंस को वो अगली एनसीईआरटी में इनकॉर्पोरेट करें. अगर सारे के सारे टीचर्स एक आवाज में बोलेंगे तो यस, ये गलतियां ठीक की जाएंगी, करेक्ट की जाएंगी. थैंक यू वंस अगेन.